Morning students, how are you? Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today we will discuss differentiation, because differentiability, continuity differentiability part is already completed, and after that we will start differentiation. So we had solved the basic differentiations questions in class 11, and we had got many formulas from the differentiation part, just like ddx of x to the power n, ddx of sin x, ddx of cos x, ddx of tan x, ddx of cot x, ddx of sec x, ddx of cosec x, ddx of u into v, ddx of u by v. And you need to recall all of these things. Okay, how did you solve these things? How did I solved these formulas by using the first principle? So you need to remember all of these things. You have to recall each and every concepts whatever you had got in the junior classes as well, that will be used in class 12 also. तो जैसे क्लास 11th में ddx of x to the power n, nx to the power n minus 1, ddx of sin x means cos x, ddx of cos x equals to minus sin x, ddx of cot x, tan x, that means sec square x, ddx of cosec x minus cosec x cot x, ठीक है ना, ddx of sec x tan x, ddx of cot x minus cosec square x. तो देखिए 1 2 3 1 2 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर ddx ऑफ log x और भी है, बहुत सारा है, ddx ऑफ log x 1 by x, ddx of e to the power x, that means e to the power x, ddx of a to the power x, that means a to the power x log ea. This type of formulas were discussed in class 11th. Okay, and we had solved these questions also, and I had provided all the solutions. That means how did you get these formulas? I had provided all of these things, all of the formulas by using the first principle. I will give the link in the video description. Just check it and see that lectures first. Okay, that will be very much helpful for you. Okay, so in class 12 we will get some new formulas. ddx of sin inverse x, ddx of cos inverse x, ddx of tan inverse x, ddx of cot inverse x, ddx of sec inverse x, ddx of cosec inverse x. That means inverse trigonometric functions related 1 2 3 4 5 6. ये फॉर्मूलाज सिर्फ तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा क्लास 12 में. ठीक है, फॉर्मूलाज लिख लो, हम लोग डेरिवेशंस भी करेंगे. रूट ओवर दिस वन, ये होता है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस रहेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सामने एक माइनस रहेगा, और ये 1 बाई मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सामने एक माइनस रहेगा शायद, 1 बाई रूट ओवर 1 बाई मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, सेक में माइनस नहीं रहेगा, कॉसेक में माइनस रहेगा. दैट मीन्स दिस आर द फॉर्मूलाज. ये क्लास 12 में है और क्लास 11th में तुम्हें ये सब फॉर्मूलाज मिला था. ठीक है, तो ये है द होल कलेक्शंस ऑफ द फॉर्मूलाज फ्रॉम डिफरेंशिएशन चैप्टर. ओके,
तो just I want you to recall all the concepts and all these things and all the process, all the types of differentiations whatever you had in class 11. ओके, तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस किया था डिफरेंशिएशन से, ठीक है, क्लास 11th में। तो आज जो है हम लोग Hi students, how are you? Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। जो फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखा गया था डिफरेंस क्लास 12 का, वो फॉर्मूलाज हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये प्रूफ्स, ये फॉर्मूलाज कैसे बना, कैसे आविष्कार हुआ, ठीक है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑब्वियसली इफ यू वांट टू सॉल्व एनीथिंग, इफ यू वांट टू प्रूफ एनीथिंग रिगार्डिंग differentiation, then you need to use first principle, the source of differentiation. Without using the source you can't move forward. Okay, so just whatever the concepts you need to prove, you will have to use the concepts, you will have to use the source of the differentiation. Okay, so ddx of sin inverse x equals to 1 by रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैसे आया है? इसके लिए एक दो फॉर्मूला तुम साइड में लिख कर रखो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, जैसे हम लोग को मिला था ना साइन एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। सिमिलरली वी हैव साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। हाँ, हम लोग को ये भी मिला था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 10x बाई एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम लोग ये भी कर सकते हैं, tan इनवर्स x बाई एक्स इक्वल्स टू 1। अब बोलोगे सर क्यों, कैसे? तो एक चीज याद रखना, एक नॉर्मल फंक्शन जो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एक इनवर्स फंक्शन भी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं? अगर ये नॉर्मल फंक्शन लिमिट के एक फॉर्मूला 1 दे रहा है वैल्यू, इनवर्स फंक्शन भी सेम उसी रास्ते में ही जाएगा, क्योंकि जस्ट डायरेक्शन चेंज होता है दोनों सेट के बीच। इससे यहां से यहां f, अब इधर से इधर आएंगे तो f इनवर्स, बट सेट चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। सेट चेंज नहीं होता है, सेट तो सेम ही रहता है। दैट मीन्स यहां पर जो f फंक्शन जो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, f इनवर्स पार्ट भी वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। रिमेंबर दिस थिंग। तो क्लास 12 का ये दो फॉर्मूला लिमिट का आप लिख के रखिए, ये यूज होगा, ओके। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2-3 फॉर्मूलाज यहां पर यूज होगा, ठीक है। हम लोग लिख के रखेंगे ये फॉर्मूलाज हैं जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट डिस्कस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शायद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग का हो ही गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का हो गया। हाँ, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग देखोगे, ठीक है। जैसे यहां पर आओ, क्या है f डैश x, वी नो दैट, लिखो वी नो दैट f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। तो ddx ऑफ sin inverse x equals to limit h tends to 0 f of x plus h, there is sin inverse of x plus h minus sin inverse x by h. So according to the inverse trigonometry formula, we have sin inverse x माइनस साइन इनवर्स y फॉर्मूला, ठीक है। साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला यहां पर यूज करना है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर बाई h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स दिस फॉर्मूला एक्चुअली, ओके। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई एक्स इक्वल्स टू 1। अब साइन इनवर्स x क्या है, ये देखो पूरा x है, साइन इनवर्स x। दैट मीन्स इफ यू वांट टू यूज दैट फॉर्मूला you need to have the same expressions whatever you have with the sine inverse function in the denominator part as well. That means if you have sine inverse this, the whole thing will have to be treated as x, okay, and the same expressions should be there in the denominator part also, so that you can use the formula. But we don't have this expression in the denominator part. मतलब यहाँ पर sin inverse x, नीचे भी यही part होना चाहिए, but we don't. Okay. Now, if we don't have these expressions, do you have any process to introduce these expressions in the denominator part? Obviously we have. क्या है, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ला सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो एक काम करो, h तो नीचे तो रहेगा ही, x प्लस एच रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। नीचे भी एक है, ऊपर भी एक लेके आ जाओ, x प्लस एच रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अब दिस पार्ट तो 1 है, अब 1 लाने के लिए ही तो इतना हंगामा किया है यहां पर, बाकी क्या रह गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर होल बाई h। ठीक है, अब according to the limit concept, if you have any root over expressions, then firstly we need to use rationalization method. सबसे पहले ये रूट को भगाना है by using rationalization। ठीक है, तो rationalization method जो है ना, ये कोई नया कॉन्सेप्ट, ये नया चीज तो नहीं है। we had actually got these concepts many times in the junior classes as well. Now, अब रेशनलाइज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर बाई h। अब यहां पर देखो ऊपर रूट दिखाई दे रहा है, अब रूट है, अब रूट को तो मारना पड़ेगा ना ऐसे, तो रूट को कैसे भगाएंगे, मार के भगाना है। ठीक है, तो मार के भगाना है, दैट मीन्स रेशनलाइजेशन करना है, तो कॉन्जुगेट देके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मारो। ठीक है, 1 माइनस ए होता है कॉन्जुगेट, देखो माइनस साइन है ना बीच में, तो प्लस साइन वाला कॉन्जुगेट होगा, s प्लस एच एक्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में देखो a प्लस बी a माइनस बी स्ट्रक्चर जो है ना वो बन रहा है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, नीचे h, ये तो एज इट इज सेम ही रहेगा, उसको और क्या करें हम लोग, हैं, वी आर टोटली हेल्पलेस, वी कांट डू एनीथिंग हियर। ओके, now in the numerator part, in the numerator part बोलो
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर बाई एच इंटू ये तो एज इट इज सेम, ठीक है। ठीक है, अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब इसको क्या तुम्हें मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, ठीक है। तो x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर डायरेक्ट मार दिया, ठीक है। और इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, मतलब इसके साथ पूरा ये दोनों, इसके साथ पूरा ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। करने से क्या फायदा हुआ, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाता है कि नहीं। एच एक्स प्लस एच रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच इंटू ब्रैकेट में देखो एक्स प्लस एच रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच इंटू रूट 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाकी कैलकुलेशन, ठीक है। पॉज करो, पॉज करके लिखो। क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर देखो h कॉमन आता है, ट्वाइस एक्स प्लस एच बाई नीचे x प्लस एच 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, एच कैंसिल, ओके। नाउ यू कैन यूज द लिमिट, एच का वैल्यू 0 पुट कर सकते हो। करने से देखो क्या आ रहा है, एक्स दिस दैट मीन्स दोनों प्लस करेंगे, ये भी ट्वाइस एक्स रूट, ये आएगा ये दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो, ठीक है ना। ठीक है, तो कॉस इनवर्स वाला तुम लोग प्रूफ करोगे, कॉस इनवर्स तुम लोग प्रूफ करोगे। तो ये सब जो है ना, ये सब प्रूफ्स, कॉस इनवर्स ddx ऑफ कॉस इनवर्स मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। होमवर्क टेन इनवर्स करा के दे रहा हूं, ठीक है। टेन इनवर्स ddx ऑफ टेन इनवर्स x, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 टेन इनवर्स x प्लस h माइनस टेन इनवर्स x बाई h। अब टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला भी हम लोग को पता होना चाहिए। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, फॉर्मूला क्या बनता है, टेन इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई, दैट इज टेन इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई होल बाई h इज देयर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर देखो x x कैंसिल, h बाई 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स होल बाई h, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द लिमिट फॉर्मूला टेन इनवर्स x बाई एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये होता है आपका पूरा टेन इनवर्स x। अब बाई तो रहना चाहिए, बाई तो नहीं है, क्या करें, हाँ h तो है, बट ये जो नीचे वाला पार्ट है ना 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स, वो ये नहीं है, तो ऊपर नीचे कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं,
बस कर लिया। तो दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये तो 1 आ रहा है, tan इनवर्स x बाई एक्स इक्वल्स टू 1। बाकी क्या रह गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स। एक्स के वैल्यू 0 बिठाओ, h के जगह 0 बिठाओ, क्या आएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूव्ड। ddx ऑफ tan इनवर्स x प्रूव्ड। दैट मीन्स ऐसे ही आप लोगों को प्रूफ करना है, ऐसा कोई यहां पर बड़ा मैटर तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशिएबिलिटी से हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे find differentiation of y इक्वल्स टू टू द पावर रूट एक्स, मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू, बात एक ही है, एफ एक्स इक्वल्स टू द पावर रूट एक्स बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट एक्स है, ठीक है। अब so f dash x equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h, ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला। दैट मीन्स ddx ऑफ e टू द पावर रूट x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर रूट f of x plus h क्या होगा, अगर f of x ये है तो f of x प्लस h, मतलब x के जगह क्या रिप्लेस होगा, x प्लस h होगा, देखो, ठीक है। सो दिस माइनस दिस बाई h है कि नहीं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको क्या कर सकते हैं, e टू द पावर रूट x अगर मैं कॉमन लूं, क्या आ रहा है, e टू द पावर रूट x प्लस h बाई ई टू द पावर रूट एक्स माइनस 1 बाई एच। कॉमन लेना तो मतलब डिवाइड करना है ना, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है। तो वही तो मैंने किया है, डिवाइड ही किया है, देखो। तो अब ई टू द पावर एक्स, उसको लिमिट के अंदर रख के भी कुछ फायदा तो है नहीं, बिकॉज ये एच का एक्सप्रेशन है लिमिट। तो ई टू द पावर रूट एक्स इज लाइक ए कॉन्स्टेंट, h टेंड्स टू 0, बाकी क्या रह गया। अब डिवाइड में रहता है, पावर माइनस होता है, वो भी हम लोग जानते हैं, e टू द पावर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स माइनस 1 बाई एच हम लोग जानते हैं। अब लिमिट में एक फॉर्मूला भी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1, है कि नहीं। अब यही कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज करूं, e टू द पावर रूट एक्स तो बाहर है, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, नीचे तो x होना चाहिए, नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, रूट ओवर x प्लस एच माइनस रूट एक्स माइनस 1 बाई h तो है ही, नीचे एक लाएंगे, ठीक है, नीचे एक लाएंगे, ऊपर भी एक लाएंगे, ऊपर भी एक होगा,
ठीक है, ठीक है, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन, ये क्या है, 1 है, बाकी क्या रह गया, e टू द पावर रूट एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ओवर एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स बाई एच आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब क्या करना है मुझे बोलो, रूट के एक्सप्रेशन आ गया, दैट मीन्स वी नीड टू यूज रैशनलाइजेशन ऑब्वियसली। तो रैशनलाइजेशन अगर मैं यहां पर यूज करूं, e टू द पावर रूट एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, रैशनलाइजेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो h कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस है, दैट मीन्स प्लस वाला कॉन्जुगेट होगा। ऊपर क्या आएगा, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हम लोग बोलो तो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्ट्रक्चर लाने के लिए। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस एच माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स एक्स, एक्स एक्स कैंसल, ठीक है, एक्स एक्स कैंसल, फिर क्या होगा, e टू द पावर रूट एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h रूट ओवर x प्लस एच प्लस रूट एक्स, h कैंसल। अब h का वैल्यू अगर मैं 0 बिठाऊं, 1 बाई रूट एक्स प्लस रूट एक्स दैट इज e टू द पावर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स इज द फाइनल आंसर, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट फाइंड द डिफरेंशिएशन, फाइंड द डिफरेंशिएशन, लेक्चर को पॉज करो, पॉज करके ये सब लिखो। फाइंड द डिफरेंशिएशन एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन एक्स, ठीक है, तो ये होता है एफ एक्स, और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, दिस इज द फॉर्मूला। लो, तो f डैश x मीन्स डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन x लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h मतलब क्या होता है, e टू द पावर साइन x के जगह x प्लस h माइनस e टू द पावर साइन x बाई h, तो डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन x इक्वल्स टू लिमिट, अभी हम लोग को क्या कॉमन लेना है, जब ये e टू द पावर समथिंग कुछ क्वेश्चंस आए, हमेशा याद रखना, ये जो लाइन लिखने के बाद सेकेंड जो टर्म रहेगा ना उसको कॉमन लेना है, ठीक है, जहां पर कुछ h नहीं है, h रिलेटेड टर्म नहीं है, उसको कॉमन लेना है, e टू द पावर साइन x कॉमन लेना है। लेने के बाद क्या रहेगा, e टू द पावर साइन x प्लस h बाई e टू द पावर साइन x माइनस 1 बाई h, ठीक है। अब डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन x लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर साइन x, अब हम लोग जानते हैं कि डिवाइड होने से पावर तो है माइनस होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, -1 बाई h, ठीक है। तो यहां पर डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन x, e टू द पावर साइन x लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो e टू द पावर साइन x प्लस h माइनस साइन x -1 बाई h, है कि नहीं। अब वही